पंजाब विच एक बार फिर मौसम बदलता दिखाई दे रहा है, जिस कारण सवेरे ते शाम नूं ठंड पैनी शुरू हो गई है। मौसम विभाग मुताबक यह बदलाव वैसटर्न डिस्टरबेंस कारण है। पिछले 24 घंटिਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 0.3 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 4.0 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 40% ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 3220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1947 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਊਰਜਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਰੇਵੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੇਤਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ, 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੇ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਵਿਨੀਪੈਗ ਅਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਕੁਈਨ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ PGWP ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 1.3 ਲੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੱਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਟਿਕਾਊ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜੱਦੀ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹਲਕਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜੋ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਬਾਬੂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ।
ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੁਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੁਕਤਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਬਾਪੂ ਬਾਦਲ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨੇ ਸੇਮ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਨਾ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਘਰ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀ ਬੈਠੇ 10 ਸਾਲ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਜ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਦੇਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਦਲ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ MLA ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ OSD ਭੇਜਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਊਗਾ ਇੱਥੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੱਢਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਮੁਰਗੇ। ਹੋਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਲੋੜ ਕੋਈ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ। 2 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ। ਆਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਆ ਗਏ ਸੀ ਜੇਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਹੈ ਇਕੱਲੇ। ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ? ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਪਾਰੀ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲੇ ਗਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲੇ ਗਏ ਇਹਨੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਢੀਠ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਢੀਠ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ। ਕੀਮਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣ, ਜਦੋਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣ, ਸ਼ਹਿਰ ਚੌੜੇ ਹੋਣ, ਵਧੀਆ ਹੋਏ, ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਧਦੀਆਂ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਖੜਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਤਰੱਕੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਮਰਗਾਬੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੇਟ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਿੱਦੜਵੇ ਧਰਨਾ ਸੀ, ਕੌਣੀ ਪਿੰਡ ਦਾ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਠੇਕਾ 1,03,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਗਿਆ ਠੇਕਾ 1,03,000। ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਠੇਕਾ, ਟਿਊਬਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਕੇ, ਕੱਸੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਲਿਫਟ ਪੰਪ ਦੇ ਕੇ, ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਠੇਕਾ ਹੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ 10,000 15,000 20,000। ਜਿਵੇਂ ਰਾਸਤਾ ਚਲੇ ਜਾਓ 20,000 ਠੇਕਾ 25,000। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਆ 1 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਚੁੱਕ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਕਹਿ ਦੇ ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ ਜੀ ਪੱਕਾ। ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੌ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਖਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਚਮਕਾ दूंगा मैं सारा। हमारे यहाँ क्या है, कल्चर है गवर्नर साहब, 10वीं करो, +2 करो और उसके बाद आईलेट्स करो, 7 बैंड ले लो, बस उसके बाद कनाडा चले जाओ। हमने आईलेट्स को ही एक डिग्री मान लिया, हालांकि वो अंग्रेज़ी का एक छोटा सा टेस्ट है। तो हमारे कॉलेजों का बुरा हाल हो गया था। विभिन्न PTU के कॉलेज जो थे 33% उनमें पिछले 2 साल पहले एडमिशन रह गई थी। अब जा तो थोड़ा बहुत तो हमारा भी योगदान है, लेकिन ज़्यादातर कनाडा वालों का है कि उन्होंने वहाँ बंद कर दिया कि नहीं यार इतने नहीं, है ना, क्योंकि वहाँ जाके भी इतना बेरोज़गारी फैल गई, धरने देने लगे वहाँ,
उन्होंने बेचारों ने धरने वरने कब देखे थे ना, तो फुटपाथ पे बैठने लगे, मुर्दाबाद होने लगी, तो वो कह रहे हैं जी अपने घर चले जाओ जी, हमसे नहीं संभाले जाते। तो इस बार हमारे यूनिवर्सिटीज़ में आप बैठे हो, हमारी यूनिवर्सिटीज़ और हमारे कॉलेजेस में बूम है इस वक्त एडमिशन का, क्योंकि हमने उनको कहा कि आ जाइए, वापस आ जाइए, पढ़िए, यहाँ पे हायर एजुकेशन लीजिए और नौकरी मिलेगी। ए ग्रेड की नौकरी के लिए पढ़ाई करें। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को हमने कहा है पढ़ाइए और लेटेस्ट सब्जेक्ट पढ़ाइए। और हम उसके लिए देखो, पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी बहुत ज़रूरी है। हम हर विधानसभा में 117 विधानसभा 4 लाइब्रेरियाँ दे रहे हैं। मेरे ख्याल में 20 से ज़्यादा लाइब्रेरियाँ तो ज़्यादा बन चुकी हैं। अपडेटेड लाइब्रेरीज़ हैं गाँव में, बड़े गाँव में, ताकि 3-4 गाँव कवर हो जाएं। AC और फुली उसका वो इंटरनेट उसके पास, और हर सब्जेक्ट की किताब प्लस जो सिलेबस की किताबें भी वहाँ पे हैं। बच्चों का माहौल कई बार घर पे पढ़ने का नहीं बनता, वहाँ 70% से ज़्यादा लड़कियाँ आती हैं। घर पे माहौल नहीं बनता पढ़ाई का, कोई आ गया, किसी का फ़ोन आ गया, तो वो वहाँ आके पढ़ती हैं अपने ग्रुप बना के। तो माहौल जितनी देर नहीं मिलेगा उतनी देर आप उम्मीद नहीं कर सकते कि बच्चा जो है वो अपनी एबिलिटी के मुताबिक काम करे या रिजल्ट दे। तो जितने भी, जैसे PAU है, PAU का काफ़ी पिछले कई साल पहले से ठीक नहीं था चल रहा। तो हमने BC साहब जो अभी बैठे हैं, वहाँ पे बैठे, टिश्यू कल्चर के दुनिया में माने हुए साइंटिस्ट हैं, तो इनको जिम्मेदारी दी। वही यूनिवर्सिटी आज नए नई खोजें कर रही है। पहले PAU से तनख्वाहें पूरी नहीं हो रही थी, अपना खर्चा नहीं उठा रहे थे। अब नई नई, चाहे वो PR 126 है, चाहे वो अभी मूंगी का एक नया बीज निकला है, अभी 2-3 पेस्टिसाइड हमने बैन किए हैं, क्योंकि एग्रेरियन स्टेट है, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हमारे पास, तो उसका फ़ायदा लेना चाहिए। और मेले लगते हैं, अब तो मेला पहले तो सिर्फ यूनिवर्सिटी में ही होता था, अब हमने उसको हर डिस्ट्रिक्ट में ले गए हैं कि लोगों को एक जगह पे ना आना पड़े, वहाँ भी मेला लगा लो, ताकि कुछ नए, अभी पराली की जो है समस्या है और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की समस्या है। तो ये आजकल देखो हर चीज़ साइंस से जुड़ गई है। हर फसल को बीजने के भी 3-3, 4-4 तरीके आ गए। आप उसको डायरेक्ट बीजोगे, आप उसको पहले पानी दे के फिर बीजोगे, आप उसको पानी में स्विंग करोगे। हर फसल के बीजने के 3-3 तरीके, स्प्रे करने के 3-3 तरीके, खाद डालने के 3-3 तरीके। ड्रोन से खाद डलने लगी है, अच्छी बात है, एक जैसी डलती है, और हाथ से जो है वो शायद पैचेस में चली जाती है। तो साइंस के बिना, AI के बिना नहीं चल सकता। हम 4 डिपार्टमेंट को AI के साथ अटैच कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, फाइनेंस एंड पॉलिसी, ताकि हमें अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिले। मैं एक आपको गवर्नर साहब छोटी सी बात बताता हूँ। हमने मैनुअली सड़कों का सर्वे करवाया कि कितनी सड़कों में गड्ढे हैं और कितना उसका खर्चा होगा। तो 60,000 किलोमीटर गांव की सड़कें। तो उन्होंने कहा जी इतने 1000 किलोमीटर सड़कों का हमने मैनुअली किया है, इतने गड्ढे हैं, इतनी बजरी और इतना वो लग के इसका बजट इतना बनेगा। हमने AI का सहारा लिया। एक गाड़ी में एक लेज़र रख दिया उन्होंने, उसकी डिग्गी खोल दी, एक सामने लेज़र लगा दिया, कहते बस इसको सड़क पे चलाते जाओ, ये लेज़र अपने आप उनको रिकॉर्ड करता जाएगा। कंप्यूटर उसमें लगाओ, आपको हैरानी होगी जब AI का रिजल्ट आया लेज़र वाला। लगभग 4000 किलोमीटर तो ऐसी सड़कें थी जो है ही नहीं। मतलब मेरे गांव से पास के गांव को 3.25 किलोमीटर है, उसको 6 लिख दिया। अब 6 की रिपेयर होगी ना, अब रिपेयर तो होगी, पैसा तो 6 का जारी किया जाएगा। 1.5 किलोमीटर सड़क वो जो है ही नहीं बढ़ गई। ऐसे ऐसे करके 3000 किलोमीटर ऐसी सड़कें
जो है ही नहीं, लेकिन उनका रिपेयर का पैसा मांगा जा रहा, और 60% बजट कम हो गया सर। तो हमने कहा यार ये तो मतलब कमाल है, कब से चल रहा होगा ये। तो AI जो आएगी उससे ये पारदर्शिता बढ़ेगी, और ये चीज़ें, ये नहीं है कि AI आएगी जी वही वाली जो पहले कंप्यूटर के समय फैलती थी ना बातें कि जी कंप्यूटर आ गया तो बंदे बेले हो जाएंगे, तो जी नौकरी नहीं मिलेगी किसी को, वो खा जाएगा। अब आज कंप्यूटर वाले नहीं मिल रहे जो कंप्यूटर चलाना जानते हो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता, दुनिया की हर नई चीज़ का विरोध होता है। दुनिया की पहली रेलगाड़ी और पहले जहाज का भी विरोध हुआ था कि ऐसे कैसे उड़ेंगे हवा में, ऐसे कैसे गार्डर पे चल सकते हैं लोहे के। आज उनके जो ग्रेट 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 ग्रैंडसन्स हैं जो आज जिंदा हैं, जिन्होंने विरोध किया था, उनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन, उनको टिकटें नहीं मिलती होंगी। तो हर चीज़ का विरोध होता है, कोई बात नहीं। AI आएगी तो बहुत ही, हाँ उसका जो बैड पार्ट है वो भी आएगा साथ में ही। जैसे सोशल मीडिया के दोनों हैं, सोशल मीडिया अच्छा भी है, सोशल मीडिया अफवाहें भी फैलाता है। तो हमने अच्छी चीज़ को चुनना है। तो AI से बहुत चेंज हो जाएगा, और आप भी AI के लिए ट्राई करो अपने अपने अदारे में, एक डिपार्टमेंट बनाओ। मैं गया था दो यूनिवर्सिटीज़ में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में गया था मैं, लवली में गया था, वहाँ ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है। मुझे दिखाया, लड़के बच्चे ड्रोन बना रहे हैं और एंटी ड्रोन का भी करवा रहे हैं। कह रहे हैं जी जो उधर से आते हैं हम उनको गिराते हैं, गोली मार के गिराते हैं जब कैसे भी, लेकिन अगर हम उनको वहाँ से उड़ने ही ना दें, हम ऐसा एक सिस्टम क्रिएट कर लें कि ऐसी तरंगे हम छोड़ें कि उधर से पाकिस्तान से वो उड़े ही ना, कि जी उन्होंने तो एंटी ड्रोन सिस्टम लगा रखा है, जैसे एंटी मिसाइल सिस्टम लगता है, जहाँ हमारी सिक्योरिटी में जैमर चलते हैं, वो मोबाइल फ़ोन बंद कर देते हैं सारे, किसी का भी मोबाइल फ़ोन नहीं चलता। तो ये चीज़ें हमें आने वाले दिनों में करनी पड़ेंगी कि MBD किताबों से या जो लिखा है, या नंबरों से हम जज नहीं कर सकते बच्चों को उनकी एबिलिटी से जज करो कि वो करना क्या चाहता है। अमेरिका में जो सबसे पहली ID अगर आपकी पूछी जाती है वो है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के, मतलब यूनिवर्सिटी वहाँ का एक क्राइटेरिया है आपकी IQ चेक करने का। तो हमारे यहाँ भी बहुत बड़े बड़े नामी, पैक का बहुत बड़ा नाम है, थापर का बहुत बड़ा नाम है, GNE का बहुत बड़ा नाम है, गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना। आपको हैरानी होगी कि बोइंग में, सियाटल में और माइक्रोसॉफ्ट में 55% इंजीनियर्स, चीफ इंजीनियर्स वो GNE से। और जो एयरफोर्स 1 बन रहा है अभी नया, 2028 में बन के तैयार होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति का प्लेन, उसका जो चीफ है, उसका सुपरवाइजर है, जिसकी अगुवाई में बन रहा है, वो GNE का पढ़ा हुआ पंजाबी है। गवर्नर साहब आइडियाज में हम बहुत आगे हैं। फ्लिपकार्ट हमारे बंदों का है, ओला हमारे बंदों की है ना। तो हम मतलब अभी मास्टर कार्ड का CEO पंजाबी है। कहाँ हैं हम, जहाँ नहीं है। जहाँ भी जाते हैं हम तो उस देश में भी कामयाब हो जाते हैं जहाँ गलती से भी चले जाएं सर, कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ आ गए तो जहाँ कामयाब हो जाते हैं। तो मेहनत में हमारा कोई सानी नहीं है। हमें गुरुओं ने, शहीदों ने सख्त मेहनत करने का और अपनी 10 नाव की कमाई करने का संकेत जो है प्रेरणा दी हुई है। तो वी आर ग्लोबल सिटीजन्स, हमें कोई किसी की कमी नहीं है। लेकिन एक बात है कि हमें जो माइग्रेशन हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा, उसको रिवर्स माइग्रेशन की तरफ लाना पड़ेगा। हमारा टैलेंट बाहर जा रहा है, अकेला टैलेंट नहीं जा रहा, साथ में पैसे जा रहे हैं बहुत, फिर परिवार चला जाता है, फिर वो घर खाली हो जाता है, वो फिर मतलब एक समझो एक पूरा परिवार, आप द्वाबा में चले जाओ, बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, पानी की टैंकी पे जहाज बना हुआ है, आईफल टावर बना हुआ है, लेकिन लॉक लगा हुआ है। और साइकी में आ गया, हम लोग यहाँ रहते हैं
40 साल हम यहाँ रहते हैं, हम कभी नहीं लिखते अपने नाम के पीछे कि जरनैल सिंह नवांशहर, जब बलविंदर सिंह बंगा, जा कुलविंदर सिंह फगवाड़ा। 2 महीने हम अमेरिका चले जाएं, गुरजंट सिंह यूएसए। मतलब ये हमारे लिए ये हो जाता है कि हम मतलब शादी के कार्ड पे भी लिख लेते हैं गुरजंट सिंह यूएसए। मैंने कहा यहाँ तो ना लिखो यार, इसमें क्या है। तो ये थोड़ा है हमारे पंजाबी कल्चर में अब्रॉड का, लेकिन तरक्की के लिए जाएं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मजबूरी लेके जाती है तो सिस्टम का कसूर है। हम थिंक टैंक बैठे हैं, हमें भी फिर अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है वो अगर जिंदगी से रिलेटेड है, जो काम आने वाला है, तो काम आ जाएगा, तो फिर तो वो बंदा कहीं से कहीं चला जाएगा। लेकिन पढ़ाया कुछ और गया, जब जिंदगी में आया, काला गाउन जिस दिन पहनना, डिग्री ली, उस दिन के बाद उसकी स्ट्रगल शुरू होती है। उस डिग्री को लेके कहाँ जाएगा वो? तो बेरोजगार पैदा करने की फैक्ट्रियां ना बने, हम स्किल डेवलपमेंट की तरफ चलें। हम आईआईटी है, आईटीआई है, तो ताकि वो बच्चा किसी ना किसी चीज का एक्सपर्ट होके निकले। एक किसी स्टेट में पोस्टमैन की पोस्टें निकली, डाकिए, तो इंटरव्यू किया गया, सबका इंटरव्यू किया गया, चुन लिए गए। उनको एक को कहा गया कि इंटरव्यू आ गई आपकी, बिल्कुल सारा आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है बिल्कुल सूट करता है, एक इंटरव्यू की जाएगी। जी बोले, 2 सवाल पूछे जाएंगे, पूछिए सर। उससे पूछा गया धरती से चांद तक की दूरी कितनी है। उसने कहा जी अगर इस रूट पे चिट्ठियां बांटनी है तो मेरी तरफ से जवाब मना है। अरे यार डाकिए रखने आपने क्या लेना चांद की दूरी से? उससे भाई साहब खरड़ पूछ लो कि खरड़ कितनी दूर है, डेरा बसी कितनी दूर है, यहाँ चिट्ठियां बंटवानी है आपने। तो मतलब आप ऐसा सवाल पूछ रहे क्योंकि वो उसमें लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है, ये पूछना है। मतलब हम लोग ज्यादा ही थ्योरिकल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा। प्रैक्टिकल जो है वो अगर थ्योरी के साथ साथ रहेगा तो फिर मतलब ना वो बंदा मार नहीं खा सकता। थ्योरी का बेस है, प्रैक्टिकल की उसके पास समझ लो स्किल है। तो जितने भी आप लोग भी बहुत से बीसी मैं जानता हूं पर्सनली, बहुत आम घरों से निकल के आए हैं, बहुत गरीबी से आए हैं निकल के, पढ़ के अपनी जिंदगी को बदला और पढ़ के आगे पढ़े, आगे पढ़ाई की, आगे की, आज इस लेवल पे हैं। और ये भी लेवल आखिरी नहीं है, अभी इससे भी ऊपर जाना है। आप एक्सपर्ट बन गए, इसके बाद एजुकेशन में और भी योगदान देना है, कोच बनना है, ठीक है ना। सो मैं जो पंजाब सरकार की तरफ से एजुकेशन हमारा प्रायोरिटी है, और हम पहली बार हुआ है 2022 के बाद कि सरकारी स्कूलों में भी पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। अभी ग्रैंड पेरेंट टीचर मीटिंग है 19 को, 18 अक्टूबर को है। लगभग 20 लाख पेरेंट्स वहाँ पे आते हैं, पहली बार हुआ है। क्योंकि हम चाहते हैं जो पेरेंट्स हैं उनको ये पता हो कि मेरे बच्चे को कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं और मेरा बच्चा स्कूल में क्या पढ़ रहा है, और टीचर्स को भी पता हो स्कूल के बाद बच्चा कहाँ जाता है, वो कौन से माहौल में रहता है। यहाँ से तो हमने छुट्टी करके भेज दिया, वहाँ संगत उसकी कैसी है, कौन से बच्चों के साथ खेलता है, ये पेरेंट्स बता सकते हैं। तो ये वाला कनेक्शन बहुत कामयाब रहा है हमारा। दूसरा, जो हेडमास्टर है, चलो आप बड़े हेडमास्टर हो यूनिवर्सिटी के, उनका तो टाइम ही इस चक्कर में जाता है, फलां बाथरूम नहीं, टूटियाँ खराब हैं, फलां बल्ब नहीं चल रहा, वहाँ बेंच टूट गया। अध्यापक हेडमास्टर का ध्यान हो स्कूल की मैनेजमेंट पर ध्यान देना, स्कूल को कैसे आगे लेके जाना है, क्या फ्यूचर के प्लान क्या करने हैं, कौन सा दिन 15 अगस्त आ रहा है, कैसे मनाना है। हमने क्या किया, हमने कैंपस मैनेजर रखे हैं। छुट्टी के बाद वो बंदे स्कूल की हिफाजत करते हैं।
छुट्टी के बाद स्कूल में कौन आता है? स्कूल आमतौर पे स्कूल तो गांव में ही बीच में ही होता है। पता चला है सर कि छुट्टी के बाद स्कूल, बहुत से स्कूलों में ड्रग वाले चले जाते हैं। वो एक सुनसान जगह हो जाती है छुट्टी के बाद, वहां बैठ के वो ड्रग कर लेते हैं, या कुछ दीवारों पे अश्लील शब्द लिख जाते हैं, बाथरूमों में लिख जाते हैं। तो माहौल स्कूल का वो नहीं रहता। तो अब हमने सिक्योरिटी के लिए अलग से, ताकि टीचर सिर्फ पढ़ाई का काम करे। अभी टीचर से पढ़ाई के बिना बाकी सारे काम लिए जाते हैं, चाहे वो जनगणना करवानी है, चाहे वो वोट गिनवाने हैं, चाहे वो कोरोना के समय तो बॉर्डर पे भी ड्यूटी लगा दी थी, आपने चेक करना है कोरोना किसको है किसको नहीं है। तो मतलब टीचर को अगर आप फ्री रखोगे, टीचर को सेफ रखोगे, टीचर अपने भविष्य के बारे में तो कम से कम ना चिंतित हो, तो फिर हमारे बच्चों का भविष्य बना सकता है। तो आप लोग के हाथों से, आप लोग के रहनुमाई में बहुत बड़े बड़े देश के आने वाले नेता भी, वकील भी, जज भी, पूरा सिस्टम आपके यहाँ से निकलेगा। और वो फ़ोटो जो खिंचवाई जाती है, जो 10th वाली या +2 वाली या यूनिवर्सिटी वाली, वो इसीलिए खिंचवाई जाती है कि बाद में याद कर सकें कि ये जो फलां जगह पे सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया है।